हाँ जी, तो ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਟ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫॉर ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਟੱਪਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਬਈ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟੂਗਾ ਵਧੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਈ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਦਰਿੰਗ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਟਾਈਮ CBSE 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਸ ਥੀਟਾ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। x ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, y ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਟ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/4। ਸੋ π/4 ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਹੁਣੇ ਭਰ ਦੋ, ਹੁਣੇ ਭਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਹੈ ਐਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਿਆ dx ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ d ਥੀਟਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਾਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਦਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। सो अगर मैं देखा तो कॉस वाली रकम नेगेटिव है, कॉस वाली टर्म पॉजिटिव है, इसने कैंसिल हो जाना है। 2 टाइम्स e रेज़ टू दी पावर थीटा a इंटू साइन थीटा साड़ी पहली वाली इक्वेशन बन गई है। सो बड़े आराम नाल पहली इक्वेशन बन गई। दूजी इक्वेशन चक ली, दूजी इक्वेशन आए तो इस इक्वेशन च y इज इक्वल टू a दी पावर, बिल्कुल सौखा है क्या, इसनों एवं ही रख लिया, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कर लिया, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है जी, a इंटू e दी पावर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट जोड़ा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, कीता की है सिर्फ साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। जो प्रोडक्ट रूल आया e दी पावर थीटा, e दी पावर थीटा आ एज इट इज प्रोडक्ट रूल लग गया। फिर एक साइन माइनस है, साइन प्लस है, कैंसल हो जाना, कॉमन करके काट लिया। पिछले मैं कॉमन नहीं करा सी, दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिता, डिवाइड किया तो साडा क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्योंकि डिवाइड किया तो आ सारी टर्म कैंसल हो जानी, इन्हें इहदे नाल कैंसल हो जाना, इन्हें इहदे नाल। सो कॉट थीटा तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है जी, सो एट π/4 एंड च π/4 कर लिया, cos π/4। ठीक है जी,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ई दी पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई दी पावर cos 2t y इज इक्वल टू ई दी पावर sin 2t। ठीक है जी, अगर इस क्वेश्चन की गल करिए फिर x दी t ते डिपेंडेंस है y दी, बट जो शो हो रहा है शो फ्री ऑफ t है। इसका मतलब ख्याल रखना एंड च कोई मैनिपुलेशन करनी पएगी, एंड विच तुहानू t हटाना पएगा तुहाडे को। ठीक है जी, सो x इज इक्वल टू ई दी पावर cos 2t लिख लिया जी, तो डेरिवेटिव कीता ये ई दी पावर एज इट इज़ हो जाता है, डी डी ऑफ उपरले का होंगे, सो इसका दोबारा करना है cos 2t का क्या आएगा माइनस sin 2t इंटू 2 आ जाएगा तुहाडे पास। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अगले स्टैप दे विच की बन गया ई दी पावर cos 2t माइनस sin 2t, इहदा जब तुसीं दोबारा करोगे तो ये वाली चीज़ बन जानी। सो पहला डेरिवेटिव आराम नाल हो गया। वारी आ गई दूसरे दी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ठीक ई दी पावर sin 2t। ठीक है, तो sin 2t जिहड़ा है डी डी टी वाई तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है सो साइन दा cos 2t आ जाएगा और 2t का फिर 2 आ जाएगा, बड़े आराम ना हो जाएगा। अब दिक्कत की आई, जदों इन्हों डिवाइड किया तो आह वाली सिचुएशन आ गई, कितने भी शो नहीं हो रहा क्योंकि साडा जिहड़ा आंसर है आंसर टी दे विच आ गया। आपां नूं आंसर काहदे विच चाहीदा हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, आपां नूं तां आंसर जिहड़ा है शो दैट किया, आपां क्वेश्चन लिखिया और शो दैट दे विच की है माइनस लॉग ऑफ वाई लॉग एक्स। इसदा मतलब की होया सानू टी एलिमिनेट करना पएगा अगले परपस दे विच। आपां हुण अगले पार्ट दे विच जिहड़ा हैगा टी एलिमिनेट करांगे। सो उहदे लई की कीता आपां स्टार्ट दे विच क्वेश्चन पकड़ लिया एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर cos 2t। ठीक है जी, हुण आपां ने दोनों पासे लॉग ले लिया। ठीक है जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हो गया। लॉग विच की हुंदा हुंदा पावर अगे आ जाती, सो पावर अगे आ गई तुहाडे कोल, अंदर की रह गया लॉग ई की हुंदा 1। ठीक है, लॉग ई 1। सो आंसर की आ गया लॉग एक्स इज इक्वल टू cos 2t। ठीक है, अगली वाली चीज़ पकड़ ली। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा कित्थे दिता है, गिवन है ना। सो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। सो फिर लॉग ले लिया। ठीक है जी, लॉग ले लिया। सो जो लॉग ले लिया लॉग y हो गया, sin 2t आगे आ गया, लॉग ई बन गया। अब लॉग ई बन गया तो देखो, ठीक है जी, लॉग ई फिर 1 हो गया तो sin 2t आ गया। ठीक है जी, हुण तुसीं सिंपली देखो जिहड़ा अपना डेरिवेटिव सी जिथे उत्थे cos 2t है उत्थे cos 2t थां ते तुसीं की फिल कर सकते हो log x। जिथे ई रेस टू दी पावर साइन एक्स है उहदी जगह ते तुहाडे कोल कॉस वाली थां ते एक्स, साइन वाली दी थां ते तुसीं वाई। सो वैल्यूज फिल कर दो, क्वेश्चन तुहाडा फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन बड़े आराम नाल हो गया। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ने, बट ये वाला क्वेश्चन 3-4 टाइम्स जोड़ा है CBSE दे विच आया हुआ है। क्वेश्चन की है x इज इक्वल टू a sin 2t ब्रैकेट है 1 प्लस cos 2t, y इज इक्वल टू b cos 2t ब्रैकेट है 1 माइनस cos 2t। ठीक है जी, सो ये तुहानू दिता होया तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो आपां ने करना dy बाई dx कढ़ना एट x इक्वल t इज इक्वल टू पाई बाई 4 ते। सो ये b बाई आपां ने शो करना है। सो बड़ा सौखा जिहा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ही करना पर डेरिवेटिव ध्यान ना करना। सो पहला x की वैल्यू पकड़ ली अपन ने, x की वैल्यू पकड़ ली। सो x की वैल्यू क्या है a इंटू साइन 2t ब्रैकेट्स 1 प्लस cos 2t। इनू तो बाहर रख ले, कांस्टेंट है। सो साइन द डेरिवेटिव cos 2t इंटू 2। ठीक है जी, अब वाली चीज़ एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल सबनों आंदा है। ठीक है जी, फिर अगले स्टैप विच साइन 2t एज इट इज़, यदा डेरिवेटिव 1 द डेरिवेटिव 0 cos द माइनस साइन इंटू 2। सो डेरिवेटिव आराम ना आ गया जी, अपन समझ आ गया। दोबारा बोलदा एक बार, ए इस तरह साइन द डेरिवेटिव cos नाल 2t दा 2 आ गया, आ सारी चीज़ ब्रैकेट एज इट इज़ प्लस। ठीक है जी, साइन 2t एज इट इज़ हो गया तो इत्थे तुहाडे कोल 0 हो गया, cos दा माइनस हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा ये आ वाली चीज़ हुण देखो तुहाडे कोल की बनी, 2 इत्थों 2 कॉमन निकल गया, अंदर की आया cos 2t मल्टीप्लाइड बाय 1 cos 2t आगे मल्टीप्लाई किया cos 2t ना, cos 2t का स्केयर हो गया। अब इसने इस नाल मल्टीप्लाई किया साइन स्केयर t हो गया। सो अगर ध्यान नाल देखिया जाए हुण तुहानू एक फार्मूला सी cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सो ये साडे कोल फार्मूला सी। तो अपने कोल क्या है, अपने कोल एंगल जिहड़ा है cos स्केयर 2 माइनस साइन स्केयर 2 है। सो इत्थे थीटा होवे तो इत्थे 2 थीटा हुंदा, इत्थे 2 आएगा तो इत्थे 4 आ जाएगा। सो ये असी फार्मूला लगा दिता। ठीक है जी, हुण असी अगले वाले पार्ट ते चले गए। ठीक है जी,
सिमिलरली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਾर्ट है, अगले पार्ट ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cos bt b ਐਂ ਰੱਖਤਾ, cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਸਾइन 2 ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, cos t ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव 0, cos ਦਾ माइनस साइन माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। ठीक है जी, 2b हो गया। सो b इसने 2 बाहर निकल गया, इसने 1 ना मल्टीप्लाई की थी, इसने माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, cos ने इसना की थी तो माइनस माइनस प्लस 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ चला गया। सो 1 टाइम्स है 1 टाइम्स है, सेम चीज़ है 2 टाइम्स होगी। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ sin 2 ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 टाइम्स sin थीटा ਤੇ ਨਾਲ cos थीटा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ sin 4 ਥੀਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ਹੋਏਗਾ। सो ਇਹਦਾ मतलब है इतने 2 sin 2 थीटा तो sin 4 थीटा आ जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि इन्नी क ट्रिग्नोमैट्री सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आती हैगी है। ठीक है जी, तो फिर आप ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ आगे चलीए। सो ट्रिग्नोमैट्री लग गई। हुण आपां ने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ ਨੂੰ डिवाइड कर लिया। सो दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो गई। ठीक है जी, सो एट पाई बाई 4, सो एट पाई बाई 4 sin 2t टी की थां ते पाई बाई 4 भर दो। सो कट गया पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 की होंगे 1, आगे नैगेटिव है तो नैगेटिव, टी पाई बाई 4, 4 ना 4 कट गया, sin पाई कितना होंगे 0, cos पाई बाई 4 फिल किया पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना होंगे 0, cos 4 ना 4 कैंसल, cos पाई माइनस 1, माइनस माइनस कटिया गया, b ओवर a आ गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पक्का आंदा पेपर दे विच, सारे स्टैप तुहानू क्लीयर कर दिते ने। ठीक है जी, सो आप आगे चलीए। ठीक है जी, सो अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है जी, CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ क्वेश्चन। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ मैं ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ लगे रहो। x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी नीचे टी स्केयर, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग टी ओवर टी। ठीक है, आप शो करना। सो देखो क्वेश्चन रूल u बाई v। सो पहले की लिखी था, ठीक है जी, v स्केयर, सो v स्केयर। ठीक है, इधर डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। ठीक है जी, सो v स्केयर v डी डी टी ऑफ अदा u। ठीक है जी, सो माइनस, सो फार्मूला सानू आंदा, सो टी दा स्केयर आ गया, फिर टी स्केयर डी डी टी ऑफ आ सारा, फिर आ ते टी स्केयर, इनू असी क्वेश्चन रूल कहने और सानू सब नू आंदा है टी स्केयर 1 का डेरिवेटिव 0 लॉग दा 1 ओवर टी ऑफ टी 1 बन जाना। सो 1 प्लस लॉग टी एज इट इज़, टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t। ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं। इस टी स्केयर ना एक टी कैंसल हो जाएगा तो एक टी बच जाएगा, माइनस ब्रैकेट खुल जाएगी, माइनस 2t आ जाएगा। सो माइनस आके आएगा, सो माइनस ही है, करेक्शन कर लो, 2t लॉग टी आ गया। अब ठीक है, दो दे विचों एक कट जाएगा क्योंकि प्लस टी है, माइनस टी माइनस 2t लॉग टी अपने कोल बच गया। ठीक है जी, नीचों टी कैंसल आउट कर लो, अपने कोल जिहड़ा हैगा ये चीज़ आ गई। हाँ जी, सो इत्थे आपां पहुँच गए जी तुहाडे कोल। तो इस तो बाद इहदा सैकेंड पार्ट उठा लीए। सैकेंड पार्ट दे विच की हैगा, फिर क्वेश्चन रूल लगेगा। सो टी दा स्केयर आ गया नीचे, फिर टी डी डी टी ऑफ आ वाला, फिर माइनस डी डी टी, तो आंदा सानू। सो इत्थे 3 दा डेरिवेटिव 0, 2 लॉग टी दा 1 ओवर टी, 3 2 लॉग 2। ठीक है, डी डी टी 1 ब्रैकेट खोल दो, इसने इसनू कैंसल कर देना 2, माइनस 3। ठीक है जी, माइनस 2 टाइम लॉग टी। सो ये भी आंसर आ गया। सो जे पिछले वाले आंसर विच तो इस वाले आंसर च फर्क देखिए, -1 -2 इत्थे टी क्यूब है, बट जो हुण आंसर आया है उत्थे माइनस इत्थे टी स्केयर आया, मतलब 1/t का ही फर्क है, दोनों को डिवाइड करता 1/t आ गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सो ध्यान रखना। 4 क्वेश्चन मैं तुहानूं पैरामीट्रिक के होर कराए ने और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। ठीक है जी, अगर सिर्फ मेरे तुसी आ वाले नोट्स कापी ते उतार लोगे ना, ठीक है, नाल NCERT कर लो, तो भी तुसी 100% मार्क्स लेके जा सकते हो। सो बिल्कुल तुहानूं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं जिहड़े बार बार पेपर च आ रहे हैं तुहाडे कोल, और बार बार आ रहे हैं तो आउणगे भी इन फ्यूचर। सो इस करके बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान नाल चलना है, ऑर्डिनरी अप्रोच नहीं रखनी हैगी। ठीक है जी, हुण आ गया तुहाडे कोल इंप्लीसिट फंक्शन। कल मैं तुहानूं इंप्लीसिट के क्वेश्चन होर करवाऊँगा, कल संडे है, कल नहीं देवांगे लेक्चर, परसों पावांगे। हुण लेक्चर तुहाडे कोल 5 लेक्चर तुहाडे हो गए। ठीक है, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, सो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंप्लीसिट फंक्शन, टाइप इहदी हैगी है इंप्लीसिट दी fxy। अगर तुसी मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा जिथे मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, शायद लेक्चर नंबर 2 है, उहदे विच तुसी जाके लेक्चर नंबर 2 दे विच देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरियल वाइज तुहानूं मेरे चैनल ते मिल जाणगे ही। सो क्वेश्चन की हैगा, क्वेश्चन है अपने को x³ + xy² = sin x + y। ठीक है जी, हुण आपां पंजाबी सीधा की कहने हैं, जो आप इंप्लीसिट फंक्शन की गल की सी, आप कहते सी XY की डिपेंडेंसी एक दूजे ते क्लीयर ना होवे, और किते नहीं क्लीयर हैगी तुहाडे कोल। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव की बनया, ठीक है 3x², ठीक है जी। उस तो बाद xy², ठीक है xy² ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ प्रोडक्ट रूल, उरे ਆਪਾਂ प्रोडक्ट रूल लाना है। सो प्रोडक्ट रूल कितना लगेगा, x एज इट इज़ y² का 2y ddx ऑफ y, ठीक है। फिर x का डेरिवेटिव 1 y² एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos, अंदरले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है जी। हुण मल्टीप्लाई कर लो जी, मल्टीप्लाई कर लो का मतलब क्या है, तुहाडे कोल बहुता लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। आ वाली चीज़ cos x प्लस y ने 1 ना मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, फिर इसने आगे मल्टीप्लाई की तो तुहाडे कोल आ गया। हुण दो डेरिवेटिव वाली रकमां ने आ वाली एक साइड ते लै जाओ, ठीक है जी, दूसरी वाली दूसरी साइड ते लै जाओ, ठीक है जी। सो आपां क्या किया, अगले वाले ते उत्ते तुहाडे कोल इसनूं लै के परले पासे ते आ चीज़ इस तरफ आ गई तो सिंपली डिवाइड करता तो तुहाडा आंसर आ गया। सो इंप्लीसिट फंक्शन सीगा, ठीक है जी। सो जिहड़ा अगला क्वेश्चन है इंप्लीसिट फंक्शन, ठीक है जी, ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये 100% श्योर क्वेश्चन है। ये घट्टो घट्ट मतलब 5-7 वारी तो CBSE च आया होया है। ईवन ये क्वेश्चन तुसी बुक विचों कर भी लिया होएगा, बट स्टिल मैं ये कुछ दसना चाह रहा वा तुहाडे कोल, उस चीज़ नूं तुसी थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना हैगा। पहली चीज़, ठीक है, ये क्वेश्चन जिहड़ा है वो इंप्लीसिट फंक्शन है, ठीक है जी। फिर बंदा सोचता है मैं डायरैक्टली क्यों नहीं इंप्लीसिट कर लेंदा, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन है नहीं। दूसरी चीज़ है क्या करोगे, इतना हो जाएगा बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो यदा शो दैट है ना, शो दैट ते ध्यान ना देखो, शो दैट विच सारा x एक पासे है। शो दैट दा आंसर इस तरह है जिमें कि तुहाडे पास वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन का होंदा, इंप्लीसिट वाले विच एक्स वाई रलिया मिलिया होंदा। जे तुसी पिछले क्वेश्चन का आंसर देखो, पिछला क्वेश्चन आपां आ कढ़िया, सो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव विच भी इदां y सारा कुछ सी। सो इंप्लीसिट आंसर भी इंप्लीसिट की तरह सी, बट जिहड़ा इस केस विच है आंसर बिल्कुल एक्सप्लिसिटली तुहानूं नज़र आ रहा है। एक साइड ते x² वाली टर्म पूरी है, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब क्या है, जे तुसी ध्यान ना सोचो तो y अलग तो निकालना पएगा। दूसरी चीज़, अगर इस तरह की कोई कंडीशन दिती हुंदी है तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तां इहदे उत्ते आपां ने सोचना है, थिंक ओवर इट, ठीक है। ये उत्ते आपने सोचना है, की सोचना है वो तुसी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। सो मैं इन्हूं इस तरह लिख लिया, सब तो पहले मैं सोचूंगा कि मैंने y मिल जाए तो मैं डेरिवेटिव कर ला, तो मैं दोनों पासे स्केयरिंग करती तो मल्टीप्लाई हो गया x², फिर x² देना y² इस ना मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। y वाली टर्म इस तरफ ले आती, a वाली टर्म इस तरफ ले गई, कॉमन कट लिया, कॉमन निकल गया, इस विचों xy -x आ गया, इस विचों a² - b² का फार्मूला ला लिया, नैगेटिव कॉमन करके कटता। हुण क्वेश्चन मैं कट दिता, सो ये हरेक केस विच कटिया नहीं जा सकता, हरेक केस विच कटिया नहीं जा सकता। मैं y लिखिया, ये स्टैप नॉर्मली जिहड़ा है हरेक क्वेश्चन च नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ नूं दोनों साइड तो कटना होवे तो उसकी गारंटी लैनी पैंदी है कि दिस शुड बी x - y शुड बी नॉन जीरो। सो ये जब तक तुसी इसकी गारंटी नहीं लोगे कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, उदों तक ये कटिया नहीं जा सकता। और बाई चांस तुहाडे क्वेश्चन दे विच देखो x नॉट इक्वल टू y, इट मीनस y - x इज़ नॉन जीरो, तुसी कट सकते हो। सो हर क्वेश्चन ये स्टैप नहीं चलेगा। सो x y दे इक्वल नहीं है, y - x नहीं है, पेपर विच ये लिखना है। सो y - x नॉन जीरो, देयरफॉर वी कैन डिवाइड नॉन जीरो नंबर ना कर सकते हैं, तो डिवाइड हो गया, वो कैंसल स्टैप हो गया। सो ये आ गया y इस तरफ, इतों आप y निकाल लिया। सो जो इतों आप y निकाल लिया, y तो बाद सिंपली एक क्वेश्चन रूल है। सो क्वेश्चन रूल लगाना है तुहाडे कोल ते तुहाडा एंड विच जाके आंसर आ जाना है, ठीक है जी। सो 5 लैक्चर आप कर ले, जिहदे विच आपां ने डेरिवेटिव की डेफिनेशन देख ली। पहले लैक्चर च आपां व्हाट इज़ डेरिवेटिव पढ़िया सीगा, उहदे विच आपां ने डेरिवेटिव नूं लिमिटिंग केस किया सीगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दा। फिर उस तो बाद आपां छोटे जे टेंजेंट्स नॉर्मल दे छोटे छोटे क्वेश्चन कीते। फिर उस तो बाद आपां नैक्सट आए तुहाडे कोल, आपां ने टेंजेंट्स नॉर्मल्स उन्हां दे कि पैरलल कदों ने, लाइनस किसी लाइन दे पैरलल ने, एक्स एक्सिस दे पैरलल ने, उस तरह के क्वेश्चनस कीते। फिर आपां इंप्लीसिट फंक्शन डिफाइन किया, फिर आपां पैरामीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया। फिर चौथे लैक्चर च आपां एंगल ऑफ इंटरसैक्शन कर्व डिफाइन किया, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन करन तो बाद अज आपां कुछ क्वेश्चन जिहड़े हैं पैरामीट्रिक कर्व्स दे ते 1-2 इंप्लीसिट फंक्शन दे कीते ने, ठीक है जी। नैक्सट लैक्चर जिहड़ा नंबर 6 होएगा उस विच आपां ज़्यादा क्वेश्चन इंप्लीसिट फंक्शनस दे करांगे। इत्थे एक चीज़ मैं क्लीयर करदा तुहाडे कोल,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 'ਚ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਛੋੜਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। 3-4 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ CBSE ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਮੈਥ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਥ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਅਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲਸ ਫੋਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 4-5 ਲੈਕਚਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 11 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ 10th ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ, ਮੀਨਸ 11 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 10 ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।